مارننگ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور نئے وبائی بحران کی زد میں منکی پاکس کا وار مزید 3 نئے کیسز رپورٹ ہوئے میو اسپتال میں 3 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے 35 سالہ صفدر 33 سالہ طیب اور 44 سالہ تنزیلہ شامل ہیں مریضوں کے علاج کے لیے الگ وارڈ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے ایمرجنسی وارڈ میں ہی زیر علاج رکھا گیا لاہور میں منکی پاکس کا خطرہ بڑھ گیا شہر میں منکی پاکس کے 3 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی تینوں مریض میو اسپتال سے رپورٹ ہوئے 35 سالہ صفدر 33 سالہ طیب اور 44 سالہ تنزیلہ منکی پاکس میں مبتلا پائے گئے میو اسپتال میں مریضوں کے علاج کے لیے کوئی آئسولیشن وارڈ میسر نہیں جہاں مریضوں کو قرنطینہ میں رکھا جا سکے قرنطینہ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے منکی پاکس کے تینوں مریض ایمرجنسی وارڈ میں ہی زیر علاج ہیں بات کریں گے شہر کے فضائی آلودگی کی تو باغوں کا شہر پھر آلودگی کے نرغے میں ہے زہریلی فضا سے سانس لینا بھی محال ہو گیا لاہور پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار شرح 284 ریکارڈ کی گئی سیکریٹریٹ کینٹ برکی روڈ ڈی ایچ اے کے علاقے آلودہ ترین قرار ماہرین کے شہریوں کو احتیاط کرنے اور ماسک لگانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے باغوں کا شہر پھر آلودگی کے نرغے میں زہریلی فضا سے سانس لینا بھی محال ہو گیا فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور پہلے نمبر پر رہا شہر میں مجموعی آلودگی کی شرح 333 ریکارڈ کی گئی سول سیکریٹریٹ میں سب سے زیادہ آلودگی کی شرح 778 ریکارڈ کی گئی برکی روڈ 529 جبکہ جوہر ٹاؤن 297 عسکری ٹین 292 بیتیا روڈ 212 ڈی ایچ اے فیز 5 192 شرح آلودگی رہی گلبرگ 2 179 اقبال ٹاؤن 170 شرح ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا کوئی امکان نہیں چند روز تک موسم سرد اور خشک رہے گا ماہرین نے شہروں کو خشک موسم اور فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے سولر سے بجلی بنانے والے صارفین کو دھچکا سولر پر نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ صارفین کے لیے اربوں کا ریلیف ختم وفاق کا نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیٹ بلنگ کا فارمولا نافذ کرنے کا پلان امپورٹ شدہ یونٹس پر قومی ٹیرف نافذ ہوگا ایکسپورٹ یونٹ پر 27 روپے ریٹ لگے گا سولر صارفین کے لیے مشکلات وفاقی حکومت نے سولر سسٹم پر نیٹ میٹرنگ ریگولیشن ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ فارمولا نافذ العمل کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا نیپرا نے سولر صارفین پر قومی ٹیرف لاگو کر کے نیٹ بلنگ فارمولا کا نفاذ کرنے کے لیے ورکنگ کا آغاز کر دیا نیٹ بلنگ فارمولا کے تحت صارفین کا امپورٹ شدہ یونٹس پر قومی ٹیرف نافذ ہوگا سولر سسٹم سے ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس پر 27 روپے فی یونٹ ریٹ لگایا جائے گا اس طرح امپورٹ اور ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس میں بجلی کی قیمت کا تعین کیا جائے گا قومی ٹیرف کی بنیاد پر بننے والے بل کو ایکسپورٹ شدہ یونٹس کے بل سے منفی کیا جائے گا اضافی بل کی صورت میں صارفین کو ادائیگی کرنا لازمی قرار دے دی جائے گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پرانے سگنل ماضی کا قصہ ہوں گے لاہوریوں کے لیے جدید ٹریفک کنٹرول سسٹم کا تحفہ لاہور اب یورپ ماڈل لاگو ہوگا 20 مرکزی شاہراہیں ہائی ٹیک سسٹم سے لیس ہوں گی جی پی او ہائی کورٹ ریگل گورنر ہاؤس کینال روڈ جنکشن شامل ہے ظفر علی روڈ فورٹریس جناح چوک عسکری ٹینٹ کی منظوری شہر میں ٹریفک سگنلز پر رش اور لمبی قطاروں کا سلسلہ ختم ہوگا جدید سسٹم سے اہم ڈیٹا ریکارڈ کیا جا سکے گا لاہور میں یورپ جیسا ٹریفک نظام رائج کیا جائے گا مال روڈ پر کامیاب پائلٹ پروجیکٹ کے بعد دیگر شاہراہوں پر بھی تنصیب کا فیصلہ کر دیا گیا پہلے مرحلے میں 20 اہم شاہراہوں پر جدید سسٹم لگایا جائے گا محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے تحت ٹیپا جدید سسٹم کی تنصیب کرے گا محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق ویڈیو وہیکل ڈیٹیکشن سسٹم کے ذریعے ٹریفک مینجمنٹ خودکار نظام سے کی جا سکے گی مرکزی اربن ٹریفک کنٹرول سسٹم بھی لگایا جائے گا زیبرا کراسنگ پر ٹریفک سگنل سے منسلک LED لائٹس کی تنصیب ہوگی سسٹم کو سمارٹ سٹی سسٹم سے بھی منسلک کیا جائے گا جی پی او ہائی کورٹ ریگل گورنر ہاؤس ڈیوس روڈ اور کینال روڈ کو جنکشن منصوبے میں شامل کیا گیا ہے ظفر علی روڈ فورٹریس اسٹیڈیم جناح چوک سرفراز رفیقی روڈ پر بھی جدید سسٹم لگایا جائے گا سیکریٹریٹ فیروز پور روڈ مسلم ٹاؤن موڑ بیکیواد دبئی چوک سگنلز منصوبے میں شامل ہیں برکت مارکیٹ فردوس مارکیٹ عسکری ٹینٹ اور پرویز اسلم چوک کو بھی جدید طرز پر بنایا جائے گا محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی اہم سمری کو صوبائی کابینہ سے منظوری مل گئی ٹیپا اور سٹی ٹریفک پولیس کے اشتراک سے اہم شاہراہوں کا انتخاب کیا گیا پیلکن ٹریفک سسٹم کی تنصیب کا عمل 5 ماہ میں مکمل کیا جائے گا اوور لوڈنگ فٹنس روٹ کی خودکار نگرانی کا فیصلہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کا عملہ گاڑیوں کی چیکنگ کیمروں کے سامنے کرے گا ناکے سیف سٹی کیمروں کے سامنے لگائے جائیں گے پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور سیف سٹیز اتھارٹی میں معاہدہ طے پا گیا
ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत का अजाला और शफाफियत की जानिब अहम कदम। ओवरलोडिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट की खुद कार निगरानी का फैसला कर लिया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का अमला गाड़ियों की चेकिंग कैमरों के सामने करेगा। ट्रैफिक और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब गाड़ियों की चेकिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा, न कि सेफ सिटी अथॉरिटीज के कैमरों के सामने लगाए जाएंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चेकिंग की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। RTA के अमले को सेफ सिटी के कैमरों के अलावा कहीं गाड़ी चेक करने की इजाजत न होगी। नई पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए सिस्टम के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सेफ सिटीज अथॉरिटी में मुआहदे तय पा गया। इब्तदाई तौर पर 24 अजला में पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट की चेकिंग ऑन कैमरा रिकॉर्ड की जाएगी। LCCA ग्राउंड ओवल ग्राउंड जैसी बनेगी। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सदारत की। लंदन और न्यूयॉर्क में रोड शोज की कामयाबी पर मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत को सराहा गया। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए सबने मेहनत की है। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले का आगाज होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL रोड शोज की कामयाबी PCB PSL की टीम की कामयाबी है। PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए सबने शबाना रोज मेहनत की। हमने इखलास से मेहनत की और अल्लाह ताला ने मदद की। कोशिश है PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। इजलास में श्रीलंकन टीम का हालिया दौरा जारी रखने पर चेयरमैन PCB की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजफ्फराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराएंगे। श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं, पूरी टीम को जाता है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रीजनल लेवल पर मारूफ निजी फर्म ने क्लब्स की स्क्रूटनी का आगाज कर दिया। मुस्तकबिल के ICC वुमेन्स और मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट्स बारे और डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे को मजबूत करने पर भी ब्रीफिंग दी गई। लंदन और न्यूयॉर्क में रोड शोज की कामयाबी पर मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत को सराहा गया। BOG मेंबरान की जानिब से मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान इस्माइल कुरैशी, तारिक सरवर, सज्जाद अली खोकर, अनवार गनी, जहीर अब्बास और तनवीर अहमद के इजलास में शरीक हुए। जफरुल्लाह मुस्तफा रमदे, अदनान मलिक, एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सुमैर अहमद, CEO PSL सलमान नसीर भी इजलास में शरीक हुए। अब यहाँ पर आपको बताएं, सर्दियों के आगाज के साथ ही शहरी गर्म और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं का रुख करते हैं, जिनमें यखनी और सूप को खास अहमियत हासिल है। बीमारियों से बचाव में माउन साबित होती है, कुव्वत मुदाफ़त मजबूत करती है। यखनी न सिर्फ जिस्म को गर्म रखती है बल्कि ये हाजमे के लिए भी मुफीद समझी जाती है। गोश्त, हड्डियों और कुदरती मसालों से तैयार की जाने वाली यखनी में प्रोटीन, मिनरल्स और नमकियात शामिल होते हैं जो जिस्मानी कमजोरी दूर करने में मदद देते हैं। सर्द मौसम में नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों में भी यखनी को फायदेमंद करार दिया जाता है। शहरी कहते हैं कि यखनी पीने से गला नरम रहता है, जिसमें पानी की कमी पूरी होती है और कुव्वत मुदाफियत मजबूत होती है। मुर्गे यखनी बनती है, बने बड़ा मजा आता है, बड़ी अच्छी है, सेहत वास्ते भी बड़ी अच्छी है, खांसी वास्ते भी बड़ी अच्छी है, जान वास्ते अच्छी है, सही है। सेहत के हवाले के लिए यखनी ज़्यादा बेस्ट है और सूप भी बेस्ट है, लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो यखनी पीते हैं अंडे के साथ। बाहर फोक चल रही है तो ये गले के लिए भी अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी है। और ये यानी कि बड़ी बात ये कि ये गर्म है, ठीक है। और दूसरी बात की जैसे आज मेरा गला ख़राब था, मैं सूप पीने आया। यखनी बेचने वाले भी रोजगार बढ़ने पर खुश नजर आते हैं। यखनी जो है वो हम दे रहे हैं 100 का बाउल, बड़ा बाउल, जो छोटा है वो 50 का। सर्दी के लिए बहुत एक मुफीद चीज़ है, जो कि इंसान जो पी के सर्दी लग रही हो तो इंसान ज़रा गर्माहट महसूस करता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यखनी को खास तौर पर मुफीद समझा जाता है क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा दियाना, सिटी 42। अशिया ज़रूरियात की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार। नए चावल की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। नए चावल की कीमत 310 रुपए किलो हो गई। 25 किलो का थैला 7,750 रुपए का हो गया। शहरी चावल महंगे होने पर नाला कीमतों में कमी का मुतालबा किया।
शहर में चावल की कीमत में इजाफा हो गया। नए चावल की कीमत में फी किलोग्राम 10 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद नए चावल की कीमत 310 रुपए फी किलोग्राम हो गई। 25 किलोग्राम चावल का थैला 250 रुपए इजाफे के साथ 7,750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपए का इजाफा करके बेचा जा रहा है। नया कच्चा आलू दरचावल 45 रुपए की बजाय 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 95 रुपए की बजाय 120 रुपए। टमाटर की सरकारी कीमत 65 मगर 80 रुपए में बेची जा रही है। फल भी 50 से 100 रुपए की इजाफे पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत और मुतलका हुकाम से मुतालिबा किया कि चावल समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मुयस्सर हो सके। और यहाँ आपको बताएं कि महकमा हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी की अनोखी मंतक मंजूरी नज़र डॉक्टर्स के लिए उम्र की हद 70 बरस तक बढ़ा दी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में बुजुर्ग भर्ती होंगे। सीनियर कंसल्टेंट की सीटों के लिए 70 साल के डॉक्टर्स अहल करार। एनकोलॉजी, रेडिएशन, रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक के सीनियर कंसल्टेंट रखे जाएंगे। डॉक्टर से दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। महकमा हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी का एक और कारनामा मंजूर नजर डॉक्टर्स को नवाजने के लिए उम्र की हद 70 बरस तक बढ़ा दी। सीनियर कंसल्टेंट की सीटों के लिए 70 साल के डॉक्टर्स अहल करार होंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में बुजुर्ग कंसल्टेंट भर्ती होंगे। ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी के 70 साल उम्र तक के सीनियर कंसल्टेंट रखे जाएंगे। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पेडियाट्रिक, ऑन्कोलॉजी के भी बुजुर्ग सीनियर कंसल्टेंट भर्ती होंगे। एनेस्थीसिया के सीनियर कंसल्टेंट के लिए 45 से 70 वर्ष के डॉक्टर्स से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। वाज़ेह रहे कि सरकारी इलाज गाह में 70 साल उम्र तक के डॉक्टर्स की भर्ती करना पहला मौका है। पंजाब में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इंकशाफ। 20,000 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड कारोबार सामने आ गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सर्वे में हजारों सर्विस सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर होने की निशानदही की गई, जिसमें डेवलपर्स, कोरियर सर्विसेज, होटल्स, टेलीकम्युनिकेशन और दीगर सर्विस सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हालिया सर्वे में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। 20,000 से जायद गैर रजिस्टर्ड कारोबार सामने आ गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सर्वे में हजारों सर्विस सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर होने की निशानदही। सर्वे के नताइज के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड कारोबारों में रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, मार्कीज, ब्यूटी सैलून्स शामिल हैं। हाउसिंग डेवलपर्स, कोरियर सर्विसेज, होटल्स, टेलीकम्युनिकेशन और दीगर सर्विस फराहम करने वाले मुतादिद सेक्टर्स गैर रजिस्टर्ड हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीमें मुख्तलिफ अजला और जोन्स में मुतहरिक हो चुकी हैं और रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों को फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने और टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के बावजूद रजिस्ट्रेशन न करवाने की सूरत में भारी जुर्मानों और दीगर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। गुलबर्ग 2 केनाल पार्क के मकीन सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि सुई गैस की बंदिश के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर हैं। गैस पाइपलाइन तब्दील के दौरान गफलत के बायस गैस की फराहमी बंद है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, महकमा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस गुलबर्ग 2 के इलाके केनाल पार्क गली नंबर 30 के मकीनों को सुई गैस की बंदिश का सामना है और सुई गैस न आने के बायस जहां लोगों के मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुके हैं, वहीं इंतज़ामिया शिकायत पर इनके मसाइल हल करने में नाकाम है, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं और इनका ये शिकवा है कि हम जो मुतादिद बार शिकायत कर चुके हैं उस पर कोई अमली इकदाम जो है वो अभी तक नहीं उठाया गया है। मज़ीद इनका क्या कहना है, इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? एक तो ये बताएं किस वजह से ये गैस बंदिश का सामना है आपको, दूसरा बताएं कि शिकायत पर क्या कहा जाता है आपसे? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि हम उधर 15-16 दिन हो गए हैं उधर मेन केनाल पार्क में कोई इन्होंने कनेक्शन अपना को चेंज करना था, वहाँ से इन्होंने कट मारा और काटने के लिए जब कनेक्शन चेंज करने लगे हैं तो उस वक्त जो है ना गैस बंद कर दी। तकरीबन हफ्ता तो वैसे ही रही है। उधर भी यही मसला रहा कि इन्होंने पूरे एक हफ्ता लगा दिया वो कनेक्शन जोड़ने के लिए। एक हफ्ते के बाद जब उन्होंने उधर कनेक्शन जोड़ा तो हमें पहले तो ये आस देते रहे आस के अब इधर से वो ज्वाइंट हो जाएगा तो आपकी गैस आ जाएगी। हम उधर भी चक्कर लगाते रहे, हम महकमे के पास हम दरख्वास्तें देते रहे जाके। 1199 पे भी हमने 12 दफ़ा कंप्लेन की है, जिसका सबूत हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हमारे मामलात और हमारी तकलीफ का किसी ने नहीं सोचा और कोई इधर बंदा आया नहीं है। दिनों से गैस नहीं आ रही और जब गैस नहीं आती है तो गुजारा कैसे हो रहा है? 15 दिन हो गए, आज 16वां दिन है। हमारे पास कंप्लेनें मौजूद हैं,
तो ये जो है ना हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। यही कहते वजह नहीं दी जा रही है सुई गैस की बंदिश पर। कैनाल पार्क के जो मकीन है वो सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि इलाके में पाइप लाइनों की तब्दीली के दौरान इंतजामी गफलत के बायस इनके इलाके की बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरा अंदाजी। वज़ीर आला ने बटन दबाकर कुरा अंदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। कुरा अंदाजी में कामयाब सनती वर्कर्स को खुद फोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मां जैसी रियासत ने 720 मेहनतकश खानदानों को उनके अपने घरों में बसाने का बंदोबस्त कर दिया। पंजाब की मेहनतकश खानदानों को माहाना किराए और बेदखली की अजियत से निकाल दिया है। 720 सनती वर्कर्स बनाए गए घरों के मालिक होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग करके अप्लाई करने वालों को फ्लैट देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी ने कहा है कि जो कहते थे कि एक इदारे में एहतसाब नहीं होता तो उस इदारे ने अपने मुलाजिम जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी है। ये खबर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। बाकी इदारों को भी बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने गंदम की कमी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि सूबे में वाफर गंदम मौजूद है, कोई किल्लत नहीं। DGPR में वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन कुरमानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सानेहाए APS पर शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। बोली, सानेहाए APS भुलाया नहीं जा सकता। सानेहा APS के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब के तमाम अवाम की तरफ से जो APS के हमारे शहदा हैं उनको खराज तहसीन, यकीनन ये दिन कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में भुलाया नहीं जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो चल रही है, जिसके साथ हमारी पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे वो इस को एक जंग को दोबारा से इस दहशतगर्दी की जंग को जो है वो कामयाबी से लड़ रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को सजा सुनाई गई। जो कहते थे कि इदारों में एहतसाब नहीं होता तो इदारों ने एक मुलाजिम को सजा सुना दी है। जो इख्तियारात को इस्तेमाल करके इदारों में मुदाखलत करते हैं उन्हें सोचना होगा। सुथरा पाकिस्तान मुहिम के तहत जो फैज़ हमीद को सजा सुनाई गई है, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि इन इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इन इदारों के अंदर जो है वो किसी को पूछा नहीं जाता। आज एक इदारे ने अपने एक मुलाजिम को जो सज़ा सुनाई है उसके जो भी किरदार था उसके ऊपर, ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और अब बाकी इदारों को भी इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन कुरमानी का कहना था कि पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, ख्वामख्वाह गंदम की किल्लत की झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। पंजाब का जो टारगेट था वो 16.5 मिलियन एकड़ था और आज हम अपने टारगेट का 102% अचीव कर चुके हैं कि 100 से 2% ऊपर। अगर मैं ये कंपेयर करूं कि पिछले साल से कितनी गंदम ज़्यादा लगी है तो पिछले साल से 4% गंदम ज़्यादा लगी है। आज के दिन तक 22 दिसंबर को हमारी फाइनल रिपोर्ट आनी है। आज के दिन तक हम 101 करोड़ 65 लाख एकड़ के टारगेट के अगेंस्ट 1 करोड़ 67 लाख एकड़ का टारगेट अल्लाह ताला के फजलो करम से अचीव कर चुके हैं। सूबाई वज़रा का कहना था कि मरियम नवाज की हुकूमत गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवा रही है। सुथरा पंजाब मॉडल से बर्मिंघम सीखना चाहता है, जो हमारे लिए एजाज है। कैमरामैन एहसन अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से कारोबारी और समाजी शख्सियत ख्वाजा नदीम सईद वाई ने मुलाकात की। कारोबारी अमूर, सरमायाकारी के फ़रोग़ और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ख्वाजा नदीम सईद वाई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहते हुए उनके कारोबार दोस्त और मौशी इस्लाहात पर मबनी इक़दामात की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मुलाकात के दौरान पंजाब में सनती तरक्की और नए सरमायाकारी मौक़े पैदा करने पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल और उनके अमली हल पर भी तफसीली बातचीत हुई। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर की सियासत में तोड़ जोड़ उरूज पर। चेयरमैन पानियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर की इशरा बाजार आमद। ताजरों ने अवालाहाना इस्तकबाल किया। सदर इशरा बाजार हाजी इशफाक ने साथियों समेत पानियर्स बिजनेसमैन ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली।
چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر کی اچرا بازار آمد پر منعقدہ تقریب میں نائب صدر لاہور چیمبر خرم لودھی، سابق نائب صدور شاہد نذیر چودھری، میاں زاہد جاوید نے شرکت کی۔ حارث عتیق، عمران بشیر، میاں خلیل عبیر، سہیل محمود بٹ اور فاروق حفیظ شریک ہوئے۔ علی حسام اصغر نے کہا کہ پی بی جی نے لاہور چیمبر میں تاجر برادری کی کھوئی ہوئی عزت بحال کی ہے۔ ساری اپنے دوستوں کے ساتھ حاجی اشفاق صاحب کے پاس آج اچرا بازار آیا۔ حاجی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں اچرے کے سارے دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ یہاں پہ پہلے چودھری جاوید صاحب نے آلریڈی اچرے میں پی بی جی کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، لیکن آج ماشاءاللہ حاجی اشفاق صاحب کے آنے سے اچرا بھی الحمدللہ پی بی جی کا قلعہ بن گیا ہے، اور میں اپنے اچرے کے سارے تاجروں سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ پائنیئرز بزنس مین گروپ آپ کے ہر مسئلے میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تقریب میں میاں عمران مقبول، زین الہی، عمران اصغر، علی رضا، محمد چودھری سمیت دیگر تاجر رہنما بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اچرا بازار کے تاجروں نے لاہور چیمبر کے آئندہ انتخابات میں پائنیئرز بزنس مین گروپ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہ دوست بیٹھے ہیں، شاہ نذیر صاحب بیٹھے ہیں، سہیل بٹ صاحب بیٹھے ہیں، زاہد جوید صاحب بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے۔ جو میں نے ان کی ایفرٹ دیکھی ہے علی حسام کی، میں کہتا ہوں کہ ایسے دوستوں کے ساتھ چلنا چاہیے کہ رات کو 2 بجے بھی آپ کو ضرورت پڑی ہے کہ انہوں نے آپ کا فون بھی سنا ہے اور کام بھی کیا ہے۔ چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر نے کہا کہ تاجر برادری کو مایوس نہیں کریں گے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ دہی خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی۔ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی کاروباری دہی خواتین کو ایوارڈز دیے گئے۔ بانی ویمن چیمبر ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ صدر فلاحت عمران، سینئر وائس پریزیڈنٹ فائزہ نبیل، وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر رحیلہ اختر، کیسرا شریف، غزالہ امجد، نعیمہ بخاری، حفظہ ندیم، زرتاشہ عمر، عائشہ خرم، رخسانہ عباس، منزہ قریشی، کرن آفتاب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی کاروباری دیہی خواتین کو ایوارڈز دیے گئے۔ خواتین کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ صدر فلاحت عمران کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، پاکستان شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار اشرف خان ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے۔ لاہور کے ایک نجی اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معالجین نے اداکار اشرف خان کو 1 ماہ مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے اور کسی بھی قسم کی پیشہ ورانہ سرگرمی سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ڈینگی بخار کے باعث کمزوری اور پلیٹلیٹس میں کمی کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر ناگزیر ہیں۔ اشرف خان کے اہل خانہ نے ان کے مداحوں، چاہنے والوں اور شوبز شخصیات سے دعائے صحت کی اپیل کی ہے۔ اشرف خان نے طویل عرصے تک ٹی وی اور فلم انڈسٹری میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور ان کی اچانک علالت کی خبر سامنے آنے پر شوبز حلقوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔